धन्यवाद आप सभी को। नमो नमः सर्वेभ्यः। मम नाम डॉक्टर आशुतोष पारिकः। अहं संस्कृतविभाग सम्राट् पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजयमेरुनगरे सह आचार्यरूपेण कार्यं करोमि। Good afternoon to everyone, and now I am going to present my paper, my research paper, and the topic is of my paper is exploring integral humanism through the lens of the ancient arch system। एकात्म मानव दर्शन प्राचीन आर्ष परंपरा के दृष्टिकोण से, अथवा हम कह सकते हैं कि एकात्म मानव दर्शन और प्राचीन आर्ष परंपरा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट व्हाट इज आर्ष। द आर्ष सिस्टम, also known as the Rishikula, is an ancient Indian social and cultural system based on the teachings and practices of the rishis and their descendants. It is deeply rooted in the Vedic tradition and has influenced various aspects of Indian society, including family, structure, education, and governance. We all know about Rishikula. We all know about Arch system. Arch system is the base of Indian culture and Indian society, and which is the best system we can say that designed by the rishis. And who are the rishis? ऋषि कौन होते हैं? The rishis are that person who scientifically proved their researches. It means they are the scientists, they are the philosophical expertise, and they have the societal effect in their by their behavior, by their working nature. So these type of rishis made something which is very important, and that is called Arsh Parampara or Arsh system. And there is one more thing which is designed by Pandit Madan Mohan, Pandit Deen Dayal Upadhyay ji, which is called Ekatma Manav Darshan. Pandit Deen Dayal Upadhyay also said that Ekatma Manav Darshan is from basic nature of Indian system. It means that this is also designed from the basic points has been taken from arch system. So these both are very similar in some aspect. लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि हमें किसी बात को कहने के लिए एक अलग-अलग तरीके से शब्दों का प्रयोग करना ज़रूरी हो जाता है। जैसा युग होता है, उस युग के अनुकूल बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अर्थात वर्तमान युग और वर्तमान युग की आवश्यकताओं के अनुरूप बात करने की जब आवश्यकता होती है, देन दीनदयाल उपाध्याय केम। And this is the reason they designed a new system which is called Ekatma Manav Darshan, or we can say that this is called integral humanism. And what is integral humanism and why this is related from Arch Parampara, we can see in this paper. सर्वप्रथम आज पूरे दिन भर बात चली होगी आर्ष परंपरा के बारे में और साथ ही एकात्म मानव दर्शन के बारे में। एंड व्हेन वी सी एकात्म मानव दर्शन, देन वी कैन सी अ मंत्र फ्रॉम ईशावास्योपनिषद which is basically in यजुर्वेद। द मंत्र इज ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ये समस्त संसार और समस्त संसार के समस्त तत्व ईश्वर से व्याप्त हैं, और इस ईश्वरमय प्रत्येक तत्व में हम सभी को एक दूसरे के साथ मिलकर के इसका उपभोग या ग्रहण करना चाहिए, बल्कि त्याग पूर्वक इसका उपभोग करना चाहिए। कभी भी किसी के लिए, किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी तत्व के लिए लालच नहीं करना चाहिए। नो ग्रीडीनेस इज रिक्वायर्ड when we are human. So, in a human being, we should work like a human, and we have to believe that all the particles of this
nature are from God, and so that we have to work accordingly. यही बात दीनदयाल उपाध्याय जी भी कहते हैं, और उनके तत्व भी, उनके सिद्धांत भी इसी मूल मंत्र को लेकर के आगे बढ़ते हैं. When we talk about ism, there are many ism, many vadas are there, और ये सभी वाद जो होते हैं, ये सभी वाद कहीं ना कहीं हमें संकुचित बना देते हैं. एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा यहाँ पर. द ism is very important, but where? The ism is very important for business, क्योंकि बिजनेस में हमें एक लक्ष्य मिलता है और उस लक्ष्य के आगे के साथ हमें आगे बढ़ना होता है. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ, देयर इज नो इज्म इज पॉसिबल. वहां पर कोई इज्म काम नहीं करता, क्योंकि वहां पर हमारा लक्ष्य केवल एक समूह का लक्ष्य नहीं है, अपितु संपूर्ण मानवीय संस्कृति का लक्ष्य है. एंड व्हेन वी टॉकिंग अबाउट human system and human development and human culture, then there is no ism might be possible. इसीलिए जब हम बात करते हैं एकात्म दर्शन की, तो यहां पर कई बार इसे एकात्म मानववाद भी कहा जाता है, लेकिन फिर भी यह उस मानववाद से कहीं अधिक है. यह एक ऐसा दर्शन है जिस दर्शन के माध्यम से हम ये समझ पाते हैं कि वास्तविकता में इस सृष्टि में मानव को किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, और यही इसका मूल मंत्र है. सो देर आर मैनी इज्म आर पॉसिबल, बट वी हैव टू वर्क फॉर ह्यूमनिज्म, एंड ह्यूमनिज्म इज नॉट वेरी संकुचित और नैरो माइंडेड. सो वी हैव टू बी ब्रॉडर एस्पेक्ट, और हमें जब व्यापक मानसिकता मिलती है, तभी जाकर के हम वास्तव में एकात्म होने की बात कर सकते हैं. सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि वी ऑल आर डिफरेंट. मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, ये बहुत प्रसिद्ध उक्ति है. हम सभी जानते हैं इस उक्ति के बारे में. हम सभी के मुंडे मुंडे अर्थात मुंड मुंड में अलग अलग प्रकृति होती है, अलग अलग बुद्धि होती है, लेकिन हम सभी में जो आत्म तत्व है, वह आत्म तत्व एक ही है, वह अलग अलग नहीं है. सो इफ वी आर ह्यूमन, or if we are soulful, then we have to think about all these patterns so that we are equal, we are same, we are one. When we say one nation, one development, या फिर एक देश एक विकास, तब हम यहाँ पर एक देश के लिए भी जब बात करते हैं, तो यहाँ पर एक देश भी बहुत छोटा देश नहीं है, अपितु यह भी संपूर्ण मानवीयता को समाहित करने वाली बात को लेकर के आता है. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इज्म, when we are talking about nationalism, when we are talking about Marxism, when we are talking about communism, then they are very narrow minded system. So we have to think about humanism, which is for all humanity on this earth. When we are talking about एकात्म मानव दर्शन, तो एकात्म मानव दर्शन जिस तरह की बात करता है, उसमें सबसे एक महत्वपूर्ण पक्ष आता है संतुलित विकास का, अर्थात बैलेंस्ड डेवलपमेंट. हम यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात भी कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है जो सस्टेन कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वह संतुलित भी हो. संतुलित होना और धारणक्षम होना, क्योंकि जो अस्तित्व में है वो निश्चित रूप से संतुलित भी है, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि वह उसकी कौन सी अवस्था है, क्या मरणावस्था है, या मरणावस्था से कुछ पहले की अवस्था है, अथवा वह एक शैशवावस्था है, यह निर्धारण नहीं हो पाता है. इसलिए जब हम विकास की बात करते हैं, तो वहां पर संतुलित विकास की बात यहाँ पर की जाती है, बैलेंस्ड डेवलपमेंट की बात की जाती है. एंड सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड अंत्योदय. It means if we have humanism, if we have integral humanism, then it should benefit for all people. The people who are below poverty line or the last people of the society. इस समाज के प्रत्येक उस व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचना चाहिए जिस लाभ की आवश्यकता इस समाज के प्रत्येक व्यक्ति को होती है. तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण उनके इस मानव दर्शन में मिलती है, वह है रूढ़िवाद का विरोध. जो भी रूढ़ियां हैं,
जो भी ऐसी परंपराएं हैं, ऐसी कुरीतियां हैं जिनका मानवीय सभ्यता के साथ किसी भी प्रकार का उदात्त दृष्टिकोण नहीं है, ऐसी रूढ़िवादियों का उन्होंने जमकर विरोध किया। और इसके पश्चात सकारात्मक विचार, अर्थात जब भी हम किसी इज्म की बात करते हैं, किसी वाद की बात करते हैं, तो वह वाद कहीं ना कहीं हमें किसी एक ही दिशा में लेकर के जाता है, व्यापक नहीं बनाता है। लेकिन एकात्म मानव दर्शन की जो महत्ता है वो इस बात में है दैट इट हैज पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थॉट्स, एंड फिफ्थ इज सबका साथ सबका विकास। ये बहुत प्रसिद्ध नारा है इस समय पर, लेकिन यह नारा कोई आज प्रसिद्ध नहीं हुआ है। भारतीय संस्कृति का यह एक ऐसा नारा है, ऐसा तत्व है जिसमें सबके साथ और सबके विकास की बात प्राचीन काल से की जाती रही है। और आप एक मंत्र नीचे देख रहे होंगे, वहां पर लिखा है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यदि हम इस सृष्टि को, ईश्वर तत्व को पूर्ण मान लेते हैं, तो हम इसमें से क्या निकाल पाएंगे और क्या रख पाएंगे? हम कुछ नहीं निकाल सकते, कुछ नहीं रख सकते हैं। जो कुछ प्राप्त करते हैं वह भी ईश्वर का है, और जो कुछ प्रदान करते हैं वह भी ईश्वर का है। अर्थात यदि सब कुछ ईश्वरमय है, तो ऐसी दृष्टिकोण में जब हम रहने वाले होते हैं, तभी जाकर के हम एकात्म भाव को प्राप्त करते हैं। When we talk about Ekatma Manav Darshan, there are some very specific points which are very important. One is राष्ट्र। What is राष्ट्र? राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र, जिसके लिए सामान्य तौर पर अंग्रेजी में हम नेशन शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, राष्ट्रवाद के लिए नेशनलिज्म शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र केवल और केवल किसी एक भूभाग में रहने वाले लोगों को नहीं कहा जा सकता। राष्ट्र एक ऐसा चित्त है, एक ऐसी कॉन्शियसनेस है, एक ऐसा वृहद व्यापार, वृहद व्यवहार है, जिसके माध्यम से हम लिमिट से लिमिटलेस की तरफ जाते हैं, अर्थात सीमित से असीमित की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। When we talk about Ekatma Manav Darshan, there is very important that our teachers, our students, our scholars should have the power to change the society, to change according to word, or change everything which is possible to develop a good human being. यदि हमें एक श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण करना है, तो हमें श्रेष्ठ शिक्षक भी चाहिए, श्रेष्ठ विद्यार्थी भी चाहिए, हमें श्रेष्ठ परिवार भी चाहिए, हमें श्रेष्ठ समाज भी चाहिए। और निश्चित रूप से इसका निर्माण केवल और केवल श्रेष्ठ मानसिकता के द्वारा हो सकता है, और उस मानसिकता का पोषण कहीं ना कहीं शिक्षा के माध्यम से संभव है। और उस शिक्षा के लिए आवश्यक हो जाते हैं भारतीय नैतिक, भारतीय शैक्षिक, भारतीय प्राचीन ज्ञान परंपरा के वे मूल्य, जो कि एक एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाते हैं। प्राचीन काल का एजुकेशन सिस्टम, जिसे हम गुरुकुलीय प्रणाली कहते थे, उस गुरुकुलीय प्रणाली में भी यही सब कुछ देखने को साफ तौर पर मिलता है। और इसी कारण से हम ये कह सकते हैं कि उस समय का जो विकास था, वह विकास एक संतुलित विकास था, एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट था, जिसमें हर वर्ग को, हर वर्ण को, हर प्रकार के व्यक्तित्व को आगे बढ़ने के पूरे अवसर प्रदान किए जाते थे। तीसरा जो एक महत्वपूर्ण पक्ष है, दैट इज कॉल्ड अपोजेस अनब्राइडल्ड कंज्यूमरिज्म। इट मीन्स असंयमित उपभोगवाद का विरोध। आज पर कैपिटा इनकम की बात की जाती है, हर व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है उसकी बात की जाती है, हर व्यक्ति के पास कितना अधिक उपभोग की सामग्री मौजूद है उसकी बात की जाती है, और यही किसी देश के विकास का सूचक बना दिया जाता है। बट दिस इज नॉट गुड, बिकॉज इस दुनिया में जितने भी तत्व हैं, उन तत्वों की एक सीमित अवस्था है। लेकिन यदि हमारी सोच, हमारा लालच असीमित बन जाएगा, तो उस सीमित तत्व के माध्यम से हम उस असीमित लालच को कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से राष्ट्रों के बीच में, समाजों के बीच में, परिवारों के बीच में और व्यक्तियों के बीच में कहीं ना कहीं दुर्भावना या दुर्व्यवहार फैलना शुरू हो जाएगा। यदि इससे बचना है,
तो बहुत जरूरी है कि हम संयम से अपने जीवन के व्रत का पालन करें, संयमित उपभोगवाद की ओर आगे बढ़े। एक महत्वपूर्ण पक्ष आता है सेल्फ टू यूनिवर्स और यूनिवर्स टू सेल्फ। जब हम अपने से आगे बढ़कर के और परमेष्टि या परमेश्वर तत्व तक पहुंचने की बात करते हैं, या फिर परमेश्वर से स्वयं तक आने की बात करते हैं, तो इन दोनों ही परिस्थितियों के अंदर ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इस पूरी यात्रा को सम्यक प्रकार से समझ सके। और निश्चित रूप से जब हम बात करते हैं 4 पुरुषार्थों की, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, these 4 purusharthas are very important aspects to develop our from self to universe or from universe to self. And other thing which is very important, which is called atmavat sarvabhuteshu यह पश्यति सह पंडितः। जो अपने समान ही दूसरे प्राणियों में देखना शुरू कर देता है, वही पंडित है, वही विद्वान है। So if a human wants to develop their society or their nation or their family or their individuals, then this is very important that we should think about our system, our old system, our arch system, and these points are very important to develop our whole country, not all whole country, but it will help to develop our humanity. If we are talking about next level, so Ekatma Manav Darshan, this is very important and feature of Ekatma Manav Darshan, and we can see that there are 7 stages, we can say, or 7 we can say a sopan, or we can say that there are 7 stoppages of this complete journey. So if we are talking about Ekatma Manav Darshan or integral humanism, one is individual, it means Vyakti. Second is family, Parivar. Third is community, Samaj. Fourth is nation, Rashtra. Fifth is humanity, Manavta. Sixth is universe, Brahmand. And 7 is Almighty or Parmeshti. जब हम बात करते हैं अपने से आगे बढ़ने की, तो ये बहुत जरूरी होता है कि हम उन सोपानों के माध्यम से आगे बढ़ें जिसमें हमारा लंघन ना हो। अर्थात ऐसा ना हो कि कई सारे सोपान छूट जाए, बहुत सारी अवस्थाएं रह जाएं और हम स्वयं के स्वार्थपूर्ण विकास के कारण से हमारे आसपास के वातावरण को छोड़ दें। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि व्यक्ति अपने परिवार को देखे, परिवार समाज को देखे, समाज राष्ट्र को देखे, राष्ट्र मानवता के बारे में सोचे और मानवता से हम ब्रह्मांड की ओर अग्रसर हों और उसके माध्यम से हम परमेष्टि, परम इष्टि, ऑलमाइटी गॉड की या फिर मोक्ष की चर्चा करना प्रारंभ करें। और यही वास्तविकता में एक ऐसा विकास होता है जिसे हम बैलेंस्ड डेवलपमेंट कह सकते हैं। आर्ष भारतीय समाज में इन सभी को एक साथ समाहित करने की बात की जाती है और सत्य और धर्म, ट्रुथ एंड धर्म इज द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ष भारतीय समाज। सत्य को समझना बहुत जरूरी है और धर्म को जानना भी बहुत जरूरी है। धर्म इज नॉट अ रिलीजन। सो धर्म अर्थात धारणात इति धर्मः, जो हम धारण करने योग्य होते हैं, अर्थात वे कर्म जो कि हम कर सकते हैं, वे तत्व जिनको हम धारण कर सकते हैं, वे बातें जो कि हम अपने जीवन में व्यवहार के रूप में लेकर के आ सकते हैं, वही हमारा धर्म है। और दूसरी तरफ सत्य, उस एटर्नल ट्रुथ को जानना बहुत जरूरी है जिस सत्य के लिए साक्षात्कार करने का हमें प्रयास करना होगा। यदि हम सत्य की ओर अग्रसर नहीं हो पाते हैं तो okay, ma'am, I can't listen you properly, but I think you are saying that I should sum up this lecture. Okay. So I'm trying to sum up in 5 minutes. Okay, it will be okay. आनंद की अनुभूति हो। Sir, in 2 minutes if you can. In 2 minutes? Yeah. Okay. ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं, आपके सामने ये तत्व मौजूद हैं
पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष त्रिविध ऋण पितृऋण ऋषि ऋण देव ऋण आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं जिनके माध्यम से हम समझ पाते हैं कि वास्तविकता में आर्ष भारतीय समाज किस प्रकार के दृष्टिकोण को लेकर चलता है। उसी प्रकार से पंच महायज्ञ रित की अवधारणा, ये सब कुछ यहाँ लिखा है और इसका विस्तार भी किया गया है, लेकिन अभी समय की अल्पता के कारण से हम इसको सब कुछ छोड़ रहे हैं। इसके पश्चात भारतीय सतत विकास या भारतीय संतुलित विकास के प्रेरक सूत्र क्या-क्या हो सकते हैं? तो यहाँ पर लिखा है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, बहुत ही प्रसिद्ध यह मंत्र का भाग है, इसको हम जानते हैं। यजुर्वेद कहते हैं, वयम स्याम पतयोरयिणाम। भारतीय विचार कहीं पर भी दरिद्र होने की बात नहीं करता है। भारतीय विचार हर समय पर समृद्धता का पोषण करने की बात करते हैं। रयिणाम पतयः, हम सभी रयी के पति अर्थात स्वामी बने। रयी अर्थात समृद्धि के, समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी बने। लेकिन कैसे बने? महत्वपूर्ण बात यह है, तो वहां पर बात आ जाती है कि हमें इदं न मम, इदं न मम, यह मेरा नहीं है, या फिर ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, उस भाव को ध्यान में रखते हुए तेन त्यक्तेन भुंजितः, त्याग पूर्वक उसका उपभोग करते हुए हमें समृद्धियों का स्वामी बनने का प्रयास करना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से ये संतुलित विकास की ओर लेकर के जाएगा। हमारे मन कैसे हों, तो तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु की बात भी वहां की जाती है। इसी प्रकार से राम और लक्ष्मण के संवाद के माध्यम से यहाँ पर मैं कहना चाहता हूं कि यदि अधिक प्राप्त करने की इच्छा राम को लंका से दूर लेकर के आ गई थी, अर्थात लंका में स्वर्ण की नगरी थी, लेकिन उनका मन बसता था अयोध्या में। अर्थात हम बहुत अधिक प्राप्त करने के प्रयास जब करते हैं तो कहीं ना कहीं स्वार्थी हो जाते हैं, हम राम नहीं बन सकते हैं। और यदि हम राम की ओर अग्रसर होना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें अपने जीवन में उस स्वार्थ को छोड़ने की बहुत अधिक आवश्यकता हो जाती है। बैलेंस डेवलपमेंट को समझाने के लिए उन्होंने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही थी। ये चार तत्व यहाँ पर आते हैं। वे कहते हैं, व्यक्ति, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि। इन चारों को जानना बहुत जरूरी है और इन चारों के माध्यम से ही हम वास्तविकता में उस बैलेंस्ड डेवलपमेंट के आधार को स्थापित कर सकेंगे। और जब हम बात करते हैं कि हमें किस प्रकार का होना चाहिए या कैसा बनना चाहिए, तो फिर यहाँ पर बात आती है कि आर यूनिटी इज स्ट्रेंथ एंड डाइवर्सिटी इज आर पावर। हम सब अलग अलग हैं, निश्चित रूप से हम सब व्यक्ति हैं, लेकिन हम सब व्यक्तियों की पावर, हम सब व्यक्तियों का अलग अलग होना ही हमारी पावर है, और यह बहुत जरूरी भी है। और जब ये सब अलग अलग व्यक्ति एकात्म रूप में बात करना शुरू करते हैं, एक दृष्टिकोण से आगे बढ़ना शुरू करते हैं, तो निश्चित रूप से यह यूनिटी हमारी स्ट्रेंथ बन जाती है। और भारतीय परिदृश्य में भी इन सभी को लेकर के यहाँ पर बात की जाती है कि किस प्रकार से हम एकात्म हो सकते हैं। जब हम संपूर्ण तत्वों को ईश्वर से युक्त मानेंगे तो हम एकात्म होंगे। जब हम इदम न मम का भाव रखेंगे तभी हम एकात्म होंगे। When we talk about वयम श्याम पतयो रयिणाम, तभी हम एकात्म हो सकेंगे। When we talk about वसुधैव कुटुंबकम, जब हम बात करेंगे कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतम समाह, जब हम बात करेंगे यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, तभी जाकर के हम एकात्म हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ यदि हमें सम्यक चीजों को जानना है तो हमें धी, मेधा और सुमति, धी अर्थात पावर ऑफ लर्निंग, मेधा अर्थात पावर ऑफ रिटेंशन और सुमति अर्थात पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जिसका वर्णन अथर्ववेद में किया गया है, इन सभी को धारण करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और इसीलिए वेद व्यापकता के दृष्टिकोण की बात करता है। वेद का अध्ययन का अधिकार सभी के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है, अर्थात सभी को शिक्षा का समान अधिकार है। और इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए हम जन्म को प्राप्त करते हैं, लेकिन जन्म भी कैसा होना चाहिए उसका वर्णन संस्कारों में हम देख सकते हैं। उसके पश्चात हम विद्यार्जन की तरफ आगे बढ़ते हैं और विद्यार्जन में गुरुकुलीय परंपरा कैसी होनी चाहिए उसकी बात समझ में आती है। और उसके पश्चात हम संस्कारों की ओर आगे बढ़ते हैं और संस्कारों के माध्यम से अपने जीवन को शुद्ध चैतन्य बनाने का प्रयास करते हैं। और उन्हीं के माध्यम से हम श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए सैकड़ों वर्षों तक या 100 वर्षों तक जीने की कामना करते हैं। और उसके पश्चात हम अपने धर्म का आचरण करते हैं। यदि हम धर्म से विरहित हो जाएंगे, अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में हम निम्न स्तर को प्राप्त करेंगे। और यदि हम उच्च से उच्च कर्मों को करने का प्रयास करेंगे तो हम श्रेष्ठता को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। और ऐसी स्थिति में हम निश्चित रूप से एकात्म बनते चले जाएंगे।
अतः यदि हम कह सकते हैं कि बहुत ही प्रसिद्ध जो श्लोक आता है वह आता है, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्व मानवः। यदि हम इस संपूर्ण सृष्टि के मानवों को, मनुष्यों को एक श्रेष्ठ जीवन प्रणाली प्रदान करना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि स्वयं सबसे पहले उस दर्शन को एक ही भाव होने का प्रयत्न करें। When we will understand these all aspects, then we can say or we can teach these aspects to everyone. And this is the main theme of दीनदयाल उपाध्याय जी। सो एकात्म के दो भाव हम लोग ले सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हम सब मिलकर के एक आत्म तत्व से पोषित हैं, और दूसरी बात ये कि हम सब जिस आत्म तत्व से पोषित हैं उसमें एकत्व को ढूंढने का प्रयास करें। और जब हम ऐसा दोनों करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम ईश्वर से स्वयं को जोड़ पाएंगे, समाज से अपने आप को जोड़ पाएंगे, परिवार से अपने आप को जोड़ पाएंगे, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति को जान पाएंगे, और ऐसी स्थिति में हम आत्मवत् सर्वभूतेषु हो जाएंगे। और यही मूल मंत्र है एकात्म मानव दर्शन का। सो आई थिंक दिस इज माय लास्ट वर्ड, एंड धन्यवाद आप सभी को कि आपने मुझे सुनने का, बोलने का यह अवसर प्रदान किया। और निश्चित रूप से यह संगोष्ठी एकात्म मानव दर्शन, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के लिए एक बहुत ही प्रेरक तत्व को आगे बढ़ाने वाली होगी। सर्वेभ्यः नमो नमः, धन्यवादः।